انفال دم ساتھے اس کا پاگلپن دیکھ سانس تک روک گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو گرانے کی؟ یکدم مہد کی دھاڑ گونجی تھی کہ دونوں نے بیک وقت اس کی سمت دیکھا۔ مہد کی شعلہ برساتی نگاہیں رومانہ پر جمی تھی۔ وہ انفال کو فرش پر بیٹھے پاؤں پکڑے دیکھ اور رومانہ کی آخری بات سن کر تیز تیز قدموں سے انفال کی جانب بڑھا۔ تمہاری بیوی خود گری ہے، میں نے نہیں گرایا، اس نے حلق تر کرتے ہمت مجتمع کرتے دھڑلے سے جھوٹ بولا تھا، جبکہ انفال نے موٹی موٹی کرسٹل لینس آنکھوں میں آنسو لیے دکھ سے مہد کو دیکھا تھا، جو خونخوار نظر سے رومانہ کو دیکھتا گویا اس گستاخی پر اسے مار ڈالے گا۔ نکلو میرے گھر سے ابھی کے ابھی، مہد نے اسے انگلی سے نکل جانے کا اشارہ کرتے برفیلے لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ پیشانی پر بے شمار بل شدید غصے میں ہونے کی نشاندہی کر رہے تھے، جبکہ اس کے یوں کہنے پر رومانہ مزید شرمندہ اور خیفہ سے سرخ پڑی تھی۔ وہ دانتوں پر سخت سے دانت جمائے مہد کو دیکھ رہی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ آؤٹ! اب کی بار مہد کے ضبط کا پیمانہ چھلک پڑا تھا کہ وہ سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کر پوری شدت سے دھاڑا تھا کہ اس کی دھاڑ پر انفال ڈر سے ہلکی سی چیختی اپنی جگہ سے اچھلی تھی، جبکہ رومانہ کا بھی یہی حال تھا۔ حویلی میں مدھم آواز میں چلتے پشتو سانگ نے اس کی دھاڑ کو خود میں جذب کر لیا تھا کہ وہ قریباً ہی سنائی دے سکی تھی، جس نے رومانہ کے ساتھ انفال کے بھی اوسان خطا کر ڈالے تھے۔ وہ دونوں خوف زدہ نظر سے مہد کو دیکھ رہی تھی۔ انفال کے یوں ڈرنے پر مہد نے اسے دیکھا تھا جو ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ تبھی وہ سورج سے 4 قدموں کا فاصلہ طے کرتا تو نہیں تیز سے انفال کو باہوں میں اٹھا چکا تھا کہ رومانہ جو مہد کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی اس عمل پر کھول اٹھی تھی، جبکہ اس اچانک ہوئی افتاد پر انفال نے ہڑ بڑھا کر ہراساں نظروں سے مہد کو دیکھا تھا۔ مہد، اس طرح رومانہ پر کیوں چلا رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ مہد مزید اس کی عزت افزائی کرتا کہ سادیہ ناگوار نظروں سے انفال کو اس کی باہوں میں دیکھ زہر خان لہجے میں بولی، پھوپھو سنبھالے اپنی بیٹی کو۔ مہد وارننگ کے انداز میں بولا، اور تم مس رومانہ اگر جان پیر تو میری بیوی سے 100 فٹ کی دوری پر رہنا۔ وہ تنفر سے بولتا مڑا۔ اس کے یوں کہنے پر سادی اور رومانہ کو انفال سے شدید جلن محسوس ہوئی تھی۔ بھول گئے کہ نفرت کرتے تھے تم اس سے، اور اب اس ناجائز۔ سادی غصے سے چیختی بولی، بس! سادی کی بات پوری ہونے سے پہلے مہد ان کی طرف رخ کیے لہجے میں چٹانوں کی سختی سے موج سخت آواز میں گرج اٹھا تھا۔ اس کی کان پٹی کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ اس کو سادی کی یہ بات انتہائی ناگوار گزرتی تھی۔ مہد سارے لحاظ پسے پشت را کر انفال کی ڈھال بنا ان کو جلا کر خاک ستری کر گیا تھا۔ سادیہ مہد کے اس رویے پر وہ زہر اگل کہ مہد کی گھراٹ سے وہ حواس باختہ سی ہو گئی، جبکہ مہد کی باہوں میں انفال نے اسی سے ڈر کر زور سے آنکھیں میچ کر اس کی گردن میں چہرہ چھپایا۔ اس کی حرکت پر مہد کے تنے اعصاب کچھ ڈھیلے پڑے تھے اور وجود میں دوڑتے خون کے ابال میں یکدم ٹھنڈک سی اتری تھی۔ اس کی نرم گرم سانسیں اور پرحدت میٹھا سا لمس محسوس کر کے مہد نے بے اختیار گہرا سانس بھر کے خود سے لپٹی انفال کو دیکھا تھا۔ دم بخود اس کے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈلے تھے، جبکہ یہ منظر رومانہ کا رہا سا خون بھی جلا گیا تھا۔ تبھی مہد نے نامحسوس انداز میں اس کے اس طرح بالوں کو لبوں سے چھوا اور شرر بار نگاہوں سے ان کو دیکھا۔ میرا ضابط مت آزمائیں آپ، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ میرا آپ سے کیا رشتہ ہے۔ یہی نصیحت آپ کی بیٹی کے لیے بھی ہے، امید ہے آپ دونوں سمجھ جائیں گی۔ وہ باور کرواتا بولا۔ اس کے لہجے سے چھلکتے عزم پر سادیہ فی الفور لبستہ ہوئی تھی کہ وہ ایک نظر ان دونوں پر ڈال کر انفال کو یوں ہی اٹھائے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ پیچھے کھڑی وہ دونوں اس کو دیکھتی پیچو تاب خا کر رہ گئی۔ بہت جلد تمہاری اس بیوی کی جگہ میں ہوں گی مہد۔ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی اور خود پر جمی اپنے مورے کی سوالیہ نظروں کو اگنور کرتی وہ آنسو باتتی تیزی سے زینے اتار گئی۔ مہد کو پانے کی خواہش میں وہ اپنی عزت نفس بری طرح مجروح کر چکی تھی، پر اسے کوئی پچھتاوا نہ تھا۔ وہ مہد کے پیچھے جنونی ہو چکی تھی اور مہد اس کی محبت سے زیادہ ضد بن چکا تھا، جسے وہ ہر قیمت پر چاہتی تھی، چاہے اسے انفال کو راستے سے ہٹانا ہی کیوں نہ پڑے۔ وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی اور اب اس پر عمل پیرا ہونے کا سوچ چکی تھی۔ ویسے تو بڑی زبان چلتی ہے تمہاری، تو اس کو جواب کیوں نہیں دیا؟ اب مہد کی توپا کا رخ اس کی جانب تھا۔ کمرے میں آتے ہی مہد نے اسے بیڈ پر پٹکنے کے انداز میں بٹھایا اور اس کے چہرے پر آنسو دیکھ کر قدرے سخت مزاج میں استفسار کیا، مام مجھے اس سے
डर लग रहा था। इनफाल ने नजरें झुकाए बिला तरद्दुद के दिल की बात बताई और निगाहें अपने सूजन ज़दा पैर पर जमाए। इस वक्त वो मासूम सी सहमी हुई हरनी की मानद लाग रही थी। पाँव में उठती टेसों पर उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नमूदार हुए थे। जबकि डरना तुम्हें मुझसे चाहिए, इधर तुम्हारी ज़बान की बरक़ियाँ फेल हो जाती हैं। उसके सहम रूप को देखकर महद झंझना उठा था कि इनफाल ने खफगी से महद को देखा। आंसू लुढ़ा कर उसकी गोद में मोतियों की मानद गिरे थे। महद ने लब भीज कर उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो उसके पाँव के टखरे पर सुर्खी समेत उसे सूजन नजर आई। ये देखकर उसे नए सिरे से गुस्सा ऊद आया था। तुम रुमाना के पास क्या कर रही थी? महद ने कड़े तेवरों से इस्तफसार किया। मैं बस वहाँ से गुजर रही थी। उसके यूँ कहने पर इनफाल तड़क कर बोली, तो क्या ज़रूरत थी? तुम एक जगह टेक कर नहीं बैठ सकती? महद हनूस अजली अंदाज अपनाए सवाल करता उसके बराबर बेड पर बैठता, उसके पाँव से एहतियात से हील उतारकर अपनी गोद में रखता जायज़ा ले रहा था। सफ़ेद नाजुक पैर पर सुर्खी गली थी। महद के हाथों का लमस महसूस करके इनफाल ने धड़कते दिल से अपना पैर छुड़ना चाहा, पर महद की गुरियों ने उसकी मज़ाहमत को ब्रेक लगाया। हनबी और मोरे ने भेजा था कि आपको ड्रेस निकाल दूँ। इनफाल आंसू बहाने के माबैन बोली, जबकि उसके कहने पर महद ने सर झटका। वो उसके पाँव को हल्का सा दाएं बाएं हिलाता जायज़ा ले रहा था कि इनफाल की कराह निकली, जिसे वो लब कुचलती रोकने की कोशिश की। पहले कौन सा तुम मेरे काम करती हो जो अब फरमान बरदार बीवी का तमगा आपने नाम करने चली थी? महद उसके कराहने पर अपनी गहरी निगाहें उसकी निगाहों में डाले बोला, जब से शादी हुई है मैं ही आपके काम कर रही हूँ जो आप मुझसे ज़बरदस्ती करवाते हैं। इनफाल आंखें छोटी किए उसे घूर कर बावर करवाती बोले, जबकि महद ने ध्यान के घोड़े दौड़ाए। जब भी वो उसके किए सारे काम याद आते गए कि उसने सिर्फ एक बार उसे नाश्ता बनाने और एक बार अपना ड्रेस निकालने का कहा था। महद ने पेशानी पर बाल डाले उसे देखा जो उसे ही देख रही थी। मसलन काम गिनवाओ अपने, वो संजीदगी से बोला, जबकि इनफाल को लगा जैसे महद ने खुल्लम खुला तंज किया हो। जब भी वो बुलबुला सी गई थी कि उस पर कारीवार हुआ था जिसका जवाब देना फ़र्ज था। मैंने आपके लिए फिरनी बनाई थी, फिर एक बार आपको ड्रेस भी निकाल कर दिया था, और सबसे बड़ा काम कि रोज़ मैं ये कमरा साफ़ करती क्योंकि आपको मुलाजमों का काम। वो तेज़ तेज़ बोलती अहम काम गिनवा रही थी जो महद की याददाश्त में हिफ्स थी। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती यकदम उसकी बुलंद आवाज़ में चीख निकली थी। उसके साथ ही उसके पाँव में उठता दर्द यकदम ख़त्म होता महसूस हुआ था। मैं उसे बातों में उलझाए उसका इलाज कर चुका था कि पाँव में आई मोच को झटका देकर वो उसका दर्द किसी हद तक कम करने में कामयाब ठहरा था। मेरा पैर, वो दाएं बाएं पाँव मोड़ती महद को देख बोली, जो अब खुशमगीन नज़रों से उसे ही देख रहा था। तुम्हारा पाँव ठीक है, अब तुम मेरा काम करो। वो संजीदगी से कहता अपनी जगह से उठा। कैसा काम? इनफाल ने इस्तफसार किया। जिन कामों के लिए खाना बी ने भेजा है। वो शर्ट के बटन खोलता बोला कि उसको शर्ट खोलते देखकर इनफाल की आंखें फैल गई। खानम बी ने आपको कपड़े निकाल कर देने का कहा है। इनफाल सुर्ख पड़ती अपनी बात पर जोर देती बोली, तो उठो और ड्रेस निकाल कर मुझे दो। महद के हाथ आखिरी बटन खोलने में मसरूफ़ थे, जबकि निगाहें उस पर जमी थी। वो उसके याकलाक सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर निचले लब का किनारा दांतों तले दबाया। वो उसके जहन में पनपते ख्यालात से बाखूबी आगाह हुआ था। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि खानम बी की ख्वाहिश पूरी की जाए। उसको खामोश देखकर महद लब दबाए भरपूर संजीदगी से बोलकर इनफाल के छक्के छुड़ा गया था। वो आंखें फाड़े मुंह खोले उसे ही देख रही थी, जो अब शर्टलेस जीन्स की पॉकेट में हाथ डाले शरीर नज़र से उसे ही देख रहा था। क्या उसे महल से ढेरों शर्म आ रही थी। नज़रें उसके चौड़े मजबूत सीने से टकरा कर वापस पलट आई थी, जबकि दिल गोया कानों में धड़कता महसूस हुआ था। मुझसे अब और इंतज़ार करना मुश्किल है। वो अपनी सहराना आंखें उसकी आंखों में गाड़े बोला, जबकि इनफाल को लगा वो अभी बेहोश हो जाएगी। उसके हाथों की हथेलियाँ पसीने से नम हो गई थी और दिल सुकड़ कर फैलता स्पीड पकड़ चुका था। मैं वो आवाज़ वक्त से बेरब्त अल्फाज में बोली, क्या तुम तैयार हो? मैं उसको देख फिर से शरारत पर आमादा हुआ। नहीं प्लीज़, मेरे पाँव में दर्द है, बहुत शदीद किस्म का, मैं बेहोश हो जाऊंगी। अपने दिल की बगड़ती हालत और महद की बातों पर वो आंखों में आंसू भरे रूहान सी आवाज़ में बोले। महद ने बगौर उसे देखा जो वाकई बेहोश होने के दर पर थी। उसकी रंगत जर्द पड़ चुकी थी, जबकि माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। मेरे सामने बहाने नहीं चलेंगे। अब जिस काम के लिए आई हो वो किए बगैर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा।
महद उसकी जानिब बढ़ता उसे फिर से बाजुओं में भर चुका था, जबकि इनफाल की बोलती यकदम बंद हुई थी और आंखों में जमा आंसू रुखसारों पर लुढ़क आए थे। प्लीज़ नहीं महद, वो अटकती सांसों के माबैन बस इतना ही बोल पाई थी। महद के बोले जुमले में मानी खीजी पर वो तड़प उठी थी। जब भी बगैर सोचे समझे बात को कोई और रुख देकर वो कस मसाई थी। उसको यूं भीगी बिल्ली बने देकर महद को कहकर जब्त करना मुश्किल लग रहा था। वो वारफ्त की निगाहों से उसके खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। निगाहें उसके पिंक लिप लवेश लगे शंगरफी लबों पर ठहर सी गई थी। उसे यकदम हल्क में कांटे चुभते महसूस हुए थे, जबकि बाहों में भरा उसका नाजुक वजूद उसे बहका रहा था। तभी वो चेहरा उसके ऐन लबों के करीब ले आया था। महद, उससे पहले कि वो ख्वाहिश पर अमल करता, इनफाल की दुख से चूर पर्राई आवाज़ ने उसका खुमार भाग से उड़ा दिया था कि उसने इनफाल के चेहरे पर गहरी सांस छोड़ी थी। उसकी गर्म सांसों के थपेड़ों ने इनफाल को आंखें मूंदने पर मजबूर कर दिया था। ड्रेस तो मुझे तुम ही निकाल कर दोगी, अब चाहे जितना मर्जी बहाने बना लो। मैं तो उसके चेहरे को वालहाना नज़रों से देखकर बोला। उसकी हालत पर लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट रुखसां थी। ड्रेस, इनफाल ने हैरानगी से कहकर 2-3 बार पलकें झपकी। पलकों को ऐसे जुम्बिश देने पर वो महद को इंतहा की प्यारी लगी थी कि बिना देर किए वो उसकी घनी मुझगान लबों से छूकर उन्हें अपने लम्हा से आशना करवा गया। हम मेरा ड्रेस। महद अपने सरकश जज्बों की तनाबें खींचता कदर सुकून से बोला और कदम वार्डरोब की जानिब बढ़ाए, जबकि इनफाल होनक बनी उसे देख रही थी। तो गोया वो इतनी देर से ड्रेस की बात कर रहा था, मतलब खानम बी की ख्वाहिश ये थी और वो क्या से क्या समझती खिफत से लाल पीली हुई जा रही थी। आप ड्रेस की बात कर रहे थे, उसने एक बार और यकीन करना चाहा। तुम्हें क्या लगा? महद उसे वार्डरोब के करीब खड़ा करता बोला। नन, कुछ भी तो नहीं। वो उसके सवाल से गड़बड़ा कर बिला वजह बाल कान के पीछे अड़िसते बोले। महद को आज वो उससे पजल होती बहुत ही प्यारी लग रही थी। जब भी वो उसके इंतहा करीब होता, एक हाथ वार्डरोब के दरवाजे पर टिकाए चेहरे उसके करीब करते, उसको नज़दीक से देखता आंखों को राहत पहुंचा रहा था, जबकि दिल की दुनिया में भूचाल बरपा था। पर बाहर से वो ठहरे हुए समुंदर की मन पुरस्कून देख रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में अपना अक्स देख रहे थे। इनफाल के दिल में गुदगुदी सी हुई थी। एक अनजाना एहसास उसे अपने लपेट में ले चुका था कि वो यकटुक महद की आंखों में देख रही थी, जबकि दिल की धड़कनों का रक्स हनूस जारी था। मेरी शीतों को सहना अभी तुम्हारे बस में नहीं। वो बात के तह तक पहुंचता पुरस्कून अंदाज में गंभीरता लहजे में बोलकर उसका गाल थप थपाते दूर हुआ, जबकि उसकी यूं मानी खेज से कहने पर इनफाल के वजूद में सर्द लहर सरायत कर गई थी और झटके से वार्डरोब की जानिब मुड़कर उसकी जानिब पुश्त कर गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इनफाल, जल्दी नीचे आओ, सब मेहमान तुम्हारा पूछ रहे हैं। निम्रा की आवाज़ सुनाई दी, जो कि काफ़ी जलजलाई हुई सी लग रही थी। निम्रा की आवाज़ पर उसने चौंक कर महद को देखा। डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास पावरफुल हथियार है। अगर किसी किस्म की जान का खतरा हो तो उसे बरुए कार लाना। महद उसके हाथ से ड्रेस लेकर भरपूर संजीदगी अपनाए आंखों से उसकी ज़बान की जानिब इशारा करता बोला। इनफाल को अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि गोया वो तंस कर गया था या बचाव का तरीका बता गया था। जो भी था, इनफाल तो उसके यूं कहने पर सुलग उठी थी। आप खुद को समझते क्या हैं आखिर? इनफाल शदीद बरहमी से चिल्लाकर बोल रही थी कि महद ने यकदम उसके लबों पर हाथ जमाए उसकी आवाज़ को हल्क में दबाया। शश, बस यही गोलियां रुमाना पर बरसानी है। वो उसकी फैली आंखों में देखकर इत्मीनान से बोलता। इनफाल को मजीद सुलगा गया था कि वो वाकई गुस्से से सुर्ख पड़ती उसके हिसार में जटपटाई थी। अब निकल भी आओ बाहर, ऐसा कौन सा काम है जो तुम जवाब देने से कासिर हो? निम्रा जिच होती बोली। निम्रा के यूं दरवाज़ा पीटने पर महद के चेहरे पर नागवार तासुरात छा गए थे। जाओ वरना तुम्हारी दोस्त दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएगी। महद उसकी पेशानी को लबों से छूता दूर हुआ। आपने ये बात कैसे की कि मैं ज़्यादा ज़बान? हश वाइट लली, इससे पहले मेरा ईमान ख़राब हो, फ़ौरन से जाओ। वो उसके लबों को अंगूठे से मसलता गंभीर जज्बात से चूर आवाज़ में बोलकर इनफाल को लड़ने पर मजबूर कर गया था। इनफाल ने लब भिंचे उसकी आंखों में देखा, जिनमें छलकते तकाज़ों को ताब न लाते वो बिना किसी देर के फ़ौरन से ड्रेसिंग रूम से निकली और दरवाजे की सिमत बढ़ गई। महद की बातों पर उसके शिद्दत भरे लमस पर दिल पर हाथ रखते जलते कुड़ती बुड़बुड़ाती हुई बाहर निकल गई। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें
تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔